हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेम स्पेसेस इन पाइथन। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ डन बाय पाइथन itself. It will take care of the values and the variables and the instances. Variable refers to an object and they are created when they are first assigned a value. In fact, the variable are bound to their value using the assignment operator. वेरिएबल जब हम कोई डिफ़ाइन करते हैं और उसमें असाइन करते हैं वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमने a इज़ इक्वल टू 10 लिया है, x इज़ इक्वल टू 7। यहाँ दो वेरिएबल हमने लिए हैं और दोनों को, एक को असाइन किया है 10 से और एक को हमने किया है 7 से। तब जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको असाइन करते हैं तो ये वेरिएबल हमारा क्रिएट होता है। और वेरिएबल रेफ़र करता है किसी ऑब्जेक्ट को, वो तब क्रिएट होते हैं जब असाइन की जाती है उसमें कोई वैल्यू। हम कह सकते हैं वेरिएबल बाउंड होते हैं वैल्यू से असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। And data types are the kind of data that is to be stored in the variable which is being used while writing a program. Python imagines the data type of a variable during the execution of program by their syntax. For example, string or character enclosed in pairs of single or double quotes. Mark represent a string value. Square bracket represent a list, tuples are enclosed in parentheses, and curly brackets for a dictionary. In Python, we don't need to declare a variable by mentioning it with data type. The interpreter of Python automatically detects the type of data being entered. तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो हमें डेटा टाइप पहले देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अंदर जो भी वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल का टाइप जो है वो डिफ़ाइन हो जाता है और इसको हम लोग डायनेमिक टाइपिंग भी कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए a इज़ इक्वल टू हमने 10 लिया। अब उसका टाइप अगर हमें देखना है तो हमने यूज़ किया है फंक्शन टाइप और वेरिएबल हमारा a है। इसके बाद a इज़ इक्वल टू हमने 10.88 लिया है, यानी कि उसके अंदर का वैल्यू हमने चेंज कर दिया। और अब इसका टाइप देखते हैं। फिर मान लीजिए हमने a का वैल्यू फिर चेंज किया, अब इसमें हमने स्ट्रिंग डाला है। अब इसको हम चेक करते हैं, यानी कि जिस तरह का वैल्यू जाएगा हमारा वेरिएबल का डेटा टाइप वैसा ही हो जाएगा। तो अब इसे रन करके हम देखेंगे। यहाँ पे इसे रन करने पे हमें दिखेगा कि डेटा टाइप ये डिफरेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा पहले इंटीजर लिया, फिर फ्लोट लिया इसने, फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप ये बन गया। Memory handling in Python is called namespace and it can be identified using id function. Namespace एक जगह है जहाँ पर आप वैल्यू या वेरिएबल के नेम को स्टोर करते हैं और जो वैल्यू होगी वो बाउंड हो जाएगी इस नेम स्पेस के साथ। यह एक मैपिंग है नेम्स की ऑब्जेक्ट के साथ जो लिंक करती है नाम को उनकी वैल्यू के साथ। A namespace is a place where a variable's name is stored and the value of variable is bound to this namespace. A namespace is a mapping from names to objects. It is a thing which associates the name with its value. In simple terms, it is a place where name lives. They are created at different moments and have different lifetimes. The examples of namespaces are built-in names. These consist of functions such as max, min, and built-in exception names. This namespace is created when the Python interpreter starts up and is never deleted. The built-in name actually also live in module called built-in. Second is global names in a module. The global namespace for a module is created when the module definition is read in and normally lasts until the interpreter quits. Names in a function invocation. The local namespace for a function is created when the function is called and deleted when the function returns or raises an exception that is not handled within the function. If we talk about classes and object, the set of attributes of an object
also form a namespace. It must be noted that there is absolutely no relation between names in different namespaces. Two different modules may both define same function without any confusion because the function are prefixed with the module name. That means module 1.cmp has no relation with module 2.cmp. The ID function returns a unique ID for the specified object. All objects in Python has its own unique ID. The ID assigned to the object when it is created. The ID is the object's memory address and will be different for each time you run the program. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने a इज़ इक्वल टू 2 लिया है, तो 2 इज़ एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन मेमोरी एंड a इज़ द नेम वी एसोसिएट इट विथ। तो 2 जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टोर होगा मेमोरी में और a जो नाम है वेरिएबल का वो एसोसिएट हो जाएगा उसके साथ। वी कैन गेट द एड्रेस of some object through built-in function ID. Let's look at how to use it. Suppose यहाँ हमने लिया है नाम 22 और हमें ID देखना है 22 का, और फिर हमने यहाँ पे ID देखा है num का। तो यहाँ पे जो ID हमारा 22 का आएगा वो सेम हमारा आएगा num का, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, num के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ये उसका ID हमें दिखाएगा। इस एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि x का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रखा है और ID हम देख रहे हैं x का। इट मीन्स कि x इज़ इक्वल टू 2 है तो ये ID दिखाएगा 2 का, और ये देखिए ये एड्रेस आया। फिर अगर हम ID देख रहे हैं 2 का तो हमारा सेम एड्रेस आया। y को हमने इनिशलाइज कर लिया है 2 से, फिर से प्रिंट किया हमने y, तो y का वैल्यू अभी 2 है हमारा, तो हमारा 2 का ID ये दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा जो सेम है। अगेन 2 हमने देखा तो ये भी हमारा सेम है। अब हमने x को इनिशलाइज किया है 6 से और हम अब प्रिंट x कर रहे हैं। इट मीन्स ये ID आएगा 6 का, तो ये 6 का ID आया और ये भी हमारा 6 का ID है। अब हम देख रहे हैं इस चीज़ को ही प्रोग्राम में बना के जो हमने अभी बनाया। x इज़ इक्वल टू 2 लिया हमने, प्रिंट ID किया x का, y इज़ इक्वल टू 2, print ID of y. It means value which is stored in y, उसका ये ID हमें दिखाएगा। ID 2 डायरेक्ट हम देख रहे हैं वैल्यू को। फिर हमने लिया x इज़ इक्वल टू 6, print ID of x and print ID वैल्यू 6, और हमने यहाँ पे लिया प्रिंट ID 2। इसे हम रन करते हैं।